ईवी बाइक पहचानी कैसे जाती थी कि अभी तुम्हें पता लग जाएगा जब ये स्पीड ब्रेकर आएगा ना, ये जब चढ़ाई आएगी तो सारे उतरेंगे, सिर्फ जो चला रहा है वो चलता रहेगा और उसके बाद वो बाइक मूव करेगी. We made the bike more powerful. We invested more money in it. और जब भी मैं ईवी का जिक्र करूँ तो मुझे घर पे तड़क करके जवाब आ जाता है, बारिश हो गई तो फिर क्या करोगी? तो हमें लगता है हमें करंट लग जाएगा और हम मर जाएंगे उसके बाद. So ये जो अभी हुई थी लास्ट ईयर बारिश, which was बहुत ज़्यादा बारिश थी. This was हमारे प्रोडक्ट का this was an actual first test, right? So in the midst of that, somebody from my team sent me a video जिसमें एक बाइकिया का राइडर है और उसकी ना, जिसको आप वो टैंकी कहते हैं, उसकी उधर तक पानी था. So he was making a video while he was showing us कि ये देखें, ये पेट्रोल बाइक है, ये बंद खड़ी हुई है, ये पेट्रोल की गाड़ी है, ये खड़ी हुई है, ये देखें मेरी अल्फा EV 125 मज़े में चले जा रही है. So another thing, of course awareness बढ़ रही है. A lot of people are moving towards EVs, but जैसे जो लोग हैं जो डरते हैं कि भाई क्यों मूव करें हम EV पे, क्यों करें मूव? अस्सलाम वालेकुम हुमा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक. महम, आप कैसी हैं? वेरी गुड, वेरी गुड. हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? Awesome. नर्वस? नॉट एट ऑल. No, not at all. Top of my world. पहले मुझे बताएं, आप खुद चलाती हैं बाइक? बिल्कुल चलाती हूँ. हाँ. ये तो प्री क्वालिफिकेशन है. हाँ. I have to. हाँ, you have to be your customer first. Absolutely. Okay. कुछ पढ़ रही थी मैं and I realized कि यार somebody was studying along with 1.5-year-old child. I mean that is insane, clearly insane, because वो एक full time job है itself. Yeah. I have a niece, 1-year-old niece, so I know कि अगर मुझे एक दिन के लिए उसको संभालने के लिए दे दिया जाए तो पूरा दिन ही मेरा सिर्फ उसके साथ चला जाता है. She demands full attention. How are you studying along with a kid? I mean I want to know that first. Not just the fact that I was studying with her. I was abroad when I was studying, so I didn't have that support system जो usually Pakistan में होता है when you have your parents, your in-laws, etc. But I would have to say that my husband was there, and I don't think I could have done it without him. So whenever I used to go to university, तो my better half used to look after her. दूसरा मेरे ख्याल है अल्लाह भी देख के जो है वो आजमाइश और काम देता है. She's my first daughter. Extremely easy to handle as well. And I think you do find a way, right? It wasn't hard. Quite honestly, it wasn't hard. If anything, that's the time that taught me how do you do multiple things that take different emotional capacity and just do the best you can. So yeah, okay. And along with the kids, you actually entered in your corporate journey as well. Yeah. Right. Also tell me about first paycheck, first salary, first stipend. बहुत ही अच्छा सवाल है. I think it was 12,000 rupees as far as I remember. Stipend? हाँ, बिल्कुल. And I was interning. My first job, as a matter of fact, was with a company called M Communications. This is when I was studying. Internship थी. Okay. That turned into a job. I requested them कि मुझे करने दें इसको full time. And it was an advertising agency, as a matter of fact. I had just gotten married. Actually, I was in university when I was doing it. So it was pretty amazing. मुझे लगता है कि whatever the number is going to be in my future, that 12,000 will still be like 12 million to me. Of course. And the learning was great as well, right? It was beyond amazing. I think I've been very, very lucky to have worked with really great people. Not just people who would say कि आपने ये काम करना है, but they would actually invest time in teaching us and in telling us कि अच्छा आगे ज़िंदगी में बढ़ने के लिए resilience कैसे पैदा करनी है, multitasking करनी है तो कैसे करना है, while doing a couple of things, how do you sort of focus and you know, सुबह में आपने एक चीज़ पे focus करना है, शाम पे किसी और पर करना है. But like I said, I've been very, very lucky. This is since the beginning till now. I'm working with people who are very open with their really good feedback and criticism also. I think it's important to take criticism very positively. So yeah, that helped a lot. Were you able to take criticism initially? Because जब भी आप corporate world में enter होते हैं, पहली internship, पहली नौकरी, you're literally you know really bothered by the criticism. How was that journey also? As a person, okay, देखें, it's fairly simple, and this is something I would say to a lot of the younger generation as well. Always remember
किबला क्या है आप, you want to grow in life, right? Hmm. तो growing pains तो होते हैं. हाँ. I mean, you start working out today and you've never worked out, your legs are going to give up the other day, right? So इसी तरह criticism भी होता है. आपको शायद at some point अच्छा लग नहीं रहा होता, but you always remember that this is going to work out and this is going to probably make so much sense in some time. So and that's how I was raised. To be fair, my father is a Fauji, extremely disciplined. तो वो criticism ना लेना तो मेरे पास option कभी था ही नहीं. It came very easily. मतलब कोई बॉस से फड्डा वड्डा हुआ ही नहीं? बहुत सारे हुए, आज भी होते हैं. मेरे बोर्ड के साथ मेरे बहुत खड्डे होते हैं. यू शुड बी देयर. इट्स एन इंडियन. वो मुझे जो देखने वाले बाहर से होते हैं वो कहते हैं पॉपकॉर्न लेके बैठने का हमारा दिल करता है, द वे यू गाइस. बट आई थिंक व्हाट मैटर्स मोस्ट इज कि किस लिए हो रहा है, and is there a constructive argument or a discussion, or is it just because we're not? So I think I've had many disagreements and such moments, but those disagreements have helped me become who I am, help the other person understand my point of view. So I mean, yes, hoye hain, and I've enjoyed them and I will keep doing them. Lovely. And you worked in multinationals also. Yeah. I mean, आपने एक पूरा जो एक डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, आप उसमें भी काम कर रहे हैं, फिर आप स्टार्टअप में आपने मूव किया. हाउ वाज दैट ट्रांजिशन फॉर यू एंड व्हाई आल्सो? It's very interesting. So yes, I have, most of my career has been with bigger organizations. Like my last company that I was working for was K Electric, a very not a difficult company. The company itself is, I would say, has great people, lovely time, but customer base, और वो आप जो बिजली बेच रहे हैं रोज़, कभी कीमतें बढ़ रही हैं, कभी कम हो रही हैं, कभी फ्यूल ऊपर नीचे, टफ था. आई वुड से कि ये जो डिफरेंट कंपनीज हैं ना, वर्किंग इन बिगर ऑर्गेनाइजेशंस, it does take a certain sort of metal that can sort of transition from a corporate sector to a startup, where you say, okay, I'll be okay with not having 1,000 people under my team, and it is going to be 10 people, and we have to make it work. But essentially what's happened is, मेरे ख्याल में मुझे इसलिए भी ज़रा आसान लगा, and you know how people say कोविड ने ये किया, कोविड ने वो किया, बहुत सारे pluses भी थे कोविड के अंदर. Unfortunately, there were a lot of layoffs as well. The entire ecosystem is moving towards leaner organizations anyway. So while I've worked for those bigger companies, I've in my last few years, मुझे बहुत ज़्यादा feel होता था कि ये बहुत ज़्यादा, there is a lot of fat that can be cut. It has to be a leaner organization. It's got to be smaller places. So startups are great. Yes, एक struggle ये ज़रूर होती है कि established company has already acquired that fund, and ये sort of आपके systems and processes सारे in place होते हैं. Startup में आप बिल्कुल ground up एक चीज़ बना रहे होते हैं. But I'm a bit of a thrill seeker myself, and I do love challenges. तो मेरा ख्याल था बड़े opportune time पे मैं shift की हूँ इधर, क्योंकि मुझे उधर challenge feel होना बंद हो गया था. अच्छा. So I mean, personally for me, I don't think it was a challenge. I'm actually loving it. And वो करते करते आप comfort zone में भी चले जाते हैं ना. बिल्कुल. That became your comfort zone. Yeah. But also you mentioned कि आप customer experience में you were part of that, right? Tell me, what did you learn? क्योंकि मुझे याद है कि off camera भी हम बात कर रहे थे, तो you mentioned कि मैंने उन customers से बहुत सीखा है, उस feedback से मुझे बहुत help हुई, and when you transition to EV, तो वो feedback आपके बहुत काम आया. Tell us about that also. एक चीज़ होती है in our language, हम उसको कहते हैं VOC, voice of customer. There's a lot of companies that use words like customer experience and voice of customer, but वो एक buzzword होता है. हाँ. I think we as leaders, what we really do need to understand is, देखें, एक ज़माना वो होता था जब टेक्नोलॉजी आपके प्रोडक्ट को ड्राइव करती थी, और डिपेंड करता था कि कौन कस्टमर्स हैं कौन नहीं है. अब वो ज़माना नहीं रहा. People are, I mean, with social media and the digital presence, and the world has become so small. Like somebody in Zilla Karak might be sitting, which is where I'm from, might be sitting, and they will know what's happening in New York. So like, information has become huge for people. You've got to listen to what the needs of the customer are. The products, हर किस्म की product की भरमार पड़ी हुई है, right?
हमने जब ये कंपनी शुरू भी की थी एंड दिस वाज सो थोड़ा सा मैं अगर आपको समझाऊँ सो वेवटेक इज़ अराउंड अ 40-year-old engineering and manufacturing company. Mashallah, they've done really well. I mean, it's a multinational company, presence in the US, the UAE, etc. EV Technologies is a sister concern of WaveTech, right? So uh, the reason EV Technologies really came into being was because somebody there wanted to solve a problem, बिल्कुल. right? So I think it was easier for us. We always make it a basis of what we do. At least we try to. अपनी पूरी कोशिश करते हैं. ये प्रोडक्ट बना ही उसी बेस के ऊपर था. We're extremely determined. ठीक है, हमने एक प्रोडक्ट बना दिया, हमने अपनी R&D की 1.5 साल. We're now testing the product. But we keep listening to what the voice of the customer is, कि वो क्या कहते हैं, वो क्या चाह रहे हैं, ताकि जो हमारी enhancement of the product है, जो evolution है, वो इसलिए ना हो because हुमा खटक feels कि जी ये चीज़ होनी चाहिए. बिल्कुल. It has to be driven by what Maham wants. So for example, if Maham is a female user of the bike, what are her needs, right? So if there is a student, उसकी different needs होंगी. If there is a gentleman who's going to a contact center taking a call, it's completely different. So you've got to sort of listen to all of those things and then see, okay, what buckets, how is it that we can improve the product? So we're huge on it. I can give you a real life example जो मैं आपको Okay, yes, of course. I was telling you the other day as well. हम जब initially बिल्कुल अभी हम सिर्फ production line शुरू कर रहे थे and I was still meeting people and different, you know. So there was a gentleman who said कि मैं आपको अच्छा कराची जो है ना या कराची specifically सिंध के अंदर is not an easy city for EV bikes because it's standing on verticals, right? Apartments and stuff, and then you know there are different areas वहाँ पे लोगों के businesses हैं etc. तो मुझे थोड़ा concern था कि ये जो खरीदेंगे वो किस तरह होगा, charging कैसे होगी etc. होगी. So I went with that gentleman. So आप आए एक काम करें, मैं आपको I'll take you to Surjani. वहाँ पे हमारे पास कुछ apartments भी and we have some houses as well. वो लोग financing करते हैं घरों की. सही है. तो कहते हैं चलें आपको मैं एंड आई वांटेड टू सी कैसे ठीक है यही तो लोग हैं जिनको हम दे रहे होंगे सो लेट मी सी व्हाट देयर से आई वाज दैट डे आई वाज एक्सट्रीमली हम्बल्ड एंड वेरी प्राउड ऑफ व्हाट आई हर्ड दैट डे. तो वो मुझे लेके गए, उन्होंने इस घर को फाइनेंस किया हुआ था. वो साहब आए एंड यू नो मैं अपनी पूरी तैयारी करके गई हुई थी, अपनी पूरी मैथ अपने दिमाग में हाँ पूरा ना एक बनाया हुआ था कि मैं इनको किस तरह कन्विंस करूँगी. ना आई स्टार्टेड आस्किंग मुझे ठीक है आपका डिस्टेंस क्या है, कितनी देर में आप पहुँचते हैं, हाउ डज़ इट वर्क एट्सेट्रा एंड अच्छा आपकी यूनिट चार्जेस क्या हैं. तो फिर मैंने थोड़ा बताना शुरू किया कि जी अल्फ़ा EV125 है वो 2 यूनिट में पूरी चार्ज हो जाती है. अब मैं वो ना बिल्ड कर रही हूँ कि जी 2 यूनिट में चार्ज होती है, अगर आप इसको रोज़ भी चार्ज करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 30 कर लें, 25 कर लें, और अगर आपका ये बैंड है. अब मैं यहाँ तक पहुँची, यू नो हाउ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वर्क राइट. सो फॉर एग्जांपल आपका अगर एक बिल आता है तो आप एक स्पेसिफिक बैंड में, ठीक है, आपका उससे बढ़ना शुरू हो जाता है तो आपका पूरा का पूरा बिल बढ़ जाता है. दैट होल टैरिफ अप्लाइज टू. मैं उनको ये समझा रही थी कि अगर बढ़ भी जाएगा तो आपको जो है ना फिर भी आपकी सेविंग होगी. अभी मैं यहाँ तक पहुँची थी कि अगर बढ़ भी गया तो एंड आई लव दैट जेंटलमैन. आई मीन आई वुड वांट टू रियली get him on board sometime and tell his story himself. He said, मैडम रुक जाएं आप एक मरतबा, इन्हें देखें ये जो मेरा घर है ना, मैंने इसके ऊपर जो है वो सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं, बैटरीज हैं मेरे पास, तो मेरे पास इतनी प्लेट्स हैं. एंड ही न्यू एग्जैक्टली एंड आई एम टेलिंग यू माम दिस इज़ नॉट एन इंजीनियर आई एम टॉकिंग टू, दिस इज़ नॉट समबडी हु इज़ इन द सोलर पावर बिजनेस जिसको ये इतनी अलिफ बे सब कुछ पता होगी. दिस इज़ अ सिंपल मैन हु इज़ डूइंग अ बिजनेस. उसने सिर्फ घर पे लगाया हुआ है. उससे कहा मुझे ज़रूरत ही नहीं है, आप मुझे क्यों यूनिट्स और ये समझा रहे हैं, मैंने एक प्लेट और लगानी है और मैं उसी बैटरी के अंदर, उसने अपनी बैटरी कैपेसिटी मुझे थोड़ी बताई कि उसी बैटरी के अंदर मैं तो ग्रिड से चार्ज ही नहीं करूँगा तो मेरे तो यूनिट चार्जेस कोई बढ़ेंगे ही नहीं. हाँ. तो वो तो रहने दें. एंड इट मेड मी वेरी हैप्पी बिकॉज आई विल बी ऑनेस्ट, I didn't think about it like that. Like, I mean, you know, we keep thinking कि जी grid से charge करेंगे, आप अपने AC socket के अंदर डालेंगे and this is how it is going to charge. People have solutions. Now, not just the fact that we understood that that's what we can do. So I went back and I called my R&D team and I said कि अच्छा इस बंदे ने ये बात बोली है,
अगर हमने लेट्स से इंटीरियर सिंध में जाना है, अनफॉर्चुनेटली ज़रा बिजली का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हाउ डू वी सॉल्व दैट प्रॉब्लम? एंड इफ़ एंड बट मुझे नहीं सुनना, I need you to give me a solution where people can charge their batteries directly through a solar panel. The way it works right now is that you will need a solar panel, you will have inverters, you will have batteries, उसके अंदर store होगी, and then you will use the energy, right? So मैंने कहा ये बीच में से सारी चीज़ें निकाल दें, बस उसको सिर्फ एक सोलर पैनल की ज़रूरत होनी चाहिए. कोई बीच में ऑब्वियसली एक कनेक्टर, कोई कंपोनेंट होगा जिससे वो डायरेक्टली चार्ज कर दे. तो in about 4 or 5 days, they came back with a solution which we have not commercially made live now, but मैं इसको बहुत जल्दी करने लगी हूँ. ऑन डिमांड मुझसे अगर कोई मांग लेता है कि जी हमारे पास ऑफ ग्रिड है, हम कम्प्लीटली हमें वो चाहिए, तो हम उनको दे देते हैं. Coming back to the point, what I'm trying to tell you is that's how important voice of customer is for us, and ज़रूरी है इसको सुनना, because बहुत सारी देखिए हम R&D के अंदर इतने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, हम कहते हैं अच्छा देखो पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, आपका अपना कस्टमर आपको बता रहा है प्रोडक्ट कैसे एनहांस करना है. तो यू बिल्ड ए प्रोडक्ट जिसमें बाइक डायरेक्टली चार्ज हो सकती है, आपको एक पैनल लगाने की जरूरत है, राइट? Just a solar panel. हाँ. There's a gadget, हाँ. and you connect it with the solar panel, and you connect it directly with your motorbike. I mean, I'm very happy to share the video of that as well with I'll you attach guys. the video within the And वो podcast. सीधा कर, because देखिए कॉस्ट कम हो जाती है ना, अगर आपने पूरा का पूरा सोलर सिस्टम लगाना है, हाँ. उसमें आपको पैनल तो चाहिए. You need an inverter as well, you need a battery as well, and that costs, right? अब वो सारा बीच में से निकाल दें. You just need a solar panel, you need that connector with your bike, and you're set. You don't need anything, you don't have to. हाँ, ये ज़रूर है जो कि हम मैं आपको थोड़ा आगे भी ज़रा इसको एक्सप्लेन करूँगी. हमें लोगों को we have to, देखिए it's a new technology, we have to teach people how to use it. So when we are saying solar panel से directly आप इसको चार्ज करें तो दिन के टाइम में होगा. हाँ. बादल आ गए तो क्या होगा, एट्सेट्रा. सो ये इसकी मिटिगेशन है बहुत सारी, जिसके अंदर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं. बट आई मीन दिस इज़ वन थिंग दैट आई हैडंट थॉट ऑफ, एंड इट वाज वॉइस ऑफ अ कस्टमर दैट मेड मी थिंक. Yeah, I mean, you can save so much money on R&D also. Sure, as a matter of fact. Yeah. And also people are moving towards solar panels, mainly solar energy right now. Plus charging centers भी बनने लग गए हैं. I don't know कितने बने हैं अभी शहर में, लेकिन हाँ आते जाते हुए देख रही हूँ कि there are many. Also हाँ, क्योंकि वर्टिकल शहर है तो ये एक चैलेंज ज़रूर है कि जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर, और if they don't have solar panel. But again coming back to the price, जो सोलर प्लेट के साथ में बाइक है, like can you give us some charges and rates of the bikes, also general EV bikes? What are the rates? जो हमारा वेरिएंट है, एक तो मैं आपको वैसे बताऊंगी कि when we talk about EV bikes, एक थोड़ा सा जिसको उर्दू में कहते हैं ना गलतुल आम टाइप एक बन गया है. 2 कैटेगरीज हैं. एक आपको स्कूटर्स बहुत सारे नज़र आएंगे, विच इज़ जितने OEMs अभी हैं, मैन्युफैक्चरर्स या असेंबलर्स, मैं कहूँगी कि जितने असेंबलर्स हैं उनके पास स्कूटर्स बहुत सारे हैं. You have a few players in the market जो कि मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. Now when you say बाइक, जब लोगों को बाइक कहते हैं वो समझते हैं स्कूटर. वो भी है बिल्कुल. हम we do have a product which is a scooter, we have a sports bike as well, but our main bread and butter is a motorbike. So आपने Honda का अक्सर नाम आता है, CD70 है, CD125 है. So हमने जो प्रोडक्ट बनाया हुआ है वो CD125 का हमने इलेक्ट्रिक वर्जन बनाया है. हमने उसको we haven't picked up a bike and then put the motor in the battery in. The ground up हमने completely product बनाया है. Our product is actually called Alpha EV125. So अगर आप उस मोटर बाइक की जो हमारी रिटेल प्राइस है, it's 325 plus tax. Good news is 1% tax, that's not 18%, so like it's not, ये नहीं है कि 325 के बाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी, but it's 325. There are other motorbikes in the market EV की जो कि similar specs और थोड़े से ज़रा कम specs के अंदर. You'll find them for about 370, 380, 360. हमने अपना price point lower जानबूझ के रखा हुआ है. This hits my margins, but हमारा, like I said, this whole company was built not on the premise of, yes, of course, making money. We're all here to make money. But we wanted to be able to really, बड़ा cliche है ये कहना, but really wanted to be able to
मेक एन इम्पैक्ट, चेंज लाइव्स, डू समथिंग फॉर दीज पीपल जो बेचारे सुबह में कहीं नौकरी कर रहे थे, उसके बाद फिर बाइक या कोई चला रहा है, कोई फूड पैंडा चला रहा है, देयर इज़ नो पर्सनल लाइफ तो ख़त्म होगी ये लोगों की. सो अगर आप बाइक लेते हैं और उसके साथ एक प्लेट लेते हैं तो 5-1 लाख के अंदर आप आराम से यू कैन डू दिस होल थिंग. किस्तों का सीन है. बिल्कुल है, 100% है. ये अच्छा सो we're partners with some people as well जो कि देते हैं. हमारी अपनी भी हैं, हम खुद भी करते हैं. So for sure, and we're paying a lot of attention to this. You must have heard about PAVE as well. Federal government की एक scheme है which is huge. Pakistan Accelerated Vehicle Electrification के नाम से है. We're one of the select few OEMs there. We are amongst the top 3 जिनके orders आए हुए हैं और बड़ी अच्छी सब्सिडी दे रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक से लेते हैं, अगर आपका नाम कुरानदाजी के अंदर आ जाता है, यू अप्लाई फॉर इट, उसके बाद एक बैलेट है, बैलेट में अगर आपका नाम आ जाता है तो 50,000 की सब्सिडी है आपके पास अगर आप बैंक के थ्रू ले रहे हैं. अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे ले रहे हैं तो यू एक्चुअली द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गिव्स यू बैक अराउंड 80,000 बिकॉज वो जो मार्कअप है ना जो बैंक का बनता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो भी आपको दे रही है वापस. along with all of these things, I think it just becomes very viable because उसकी किस्तें तकरीबन 8 से 10,000 रुपए हैं. The saving is huge. So yes, to your question, and I think it is absolutely important. नई 125 जो है वो भी अब टैक्स एट्सेट्रा रजिस्ट्रेशन मिला के वो तकरीबन 290-300,000 तक तो वो भी है. बट हम चाह रहे थे कि उस प्राइस पॉइंट को ज़रा करीब रखें उसके, ताकि लोगों को बहुत ज़्यादा ना फ़र्क फील हो. ओके. ऑल्सो जब हम कराची में रहते हैं तो अगर 15 मिनट की बारिश हो जाए तो फिर हम गए काम से. तो इट्स नॉट लाइक कि पानी ख़त्म हो जाएगा, सब सूख जाएगा, इस्लामाबाद लाहौर नहीं है, तो फिर हम हो जाते हैं परेशान. और जब भी मैं ईवी का जिक्र करूँ तो मुझे घर पे तड़क करके जवाब आ जाता है, बारिश हो गई तो फिर क्या करोगी. तो हमें लगता है हमें करंट लग जाएगा और हम मर जाएंगे उसके बाद. तो क्या होता है वैसे बारिश में? अच्छा, मैं इसका आई थिंक एन ईजियर वे ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन वुड बी टू गिव यू अ रियल लाइफ एग्जांपल. Okay. आई गिव यू दैट रियल लाइफ एग्जांपल एंड देन आई टेल यू कि ऐसा कुछ भी नहीं है. So we have a lot of Bikeia riders as well. So we are partners with Bikeia and Bikeia के बहुत सारे riders ने हमसे बाइक खरीदी हुई है. So ये जो अभी हुई थी लास्ट ईयर बारिश, which was बहुत ज़्यादा बारिश थी. This was हमारे product का this was an actual first test, right? So we were all sitting in the office braced for impact. छुट्टी भी हो, कुछ भी हो, बैठे हुए हो कि पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा. And in the midst of that, somebody from my team sent me a video जिसमें एक बाइकिया का राइडर है और उसकी ना, जिसको आप वो टैंकी कहते हैं, उसकी उधर तक पानी था. एंड आई मीन नॉट अ वेरी सेफ थिंग टू डू. आई एम स्टिल हैप्पी दैट ही डिड इट. दिस इज़ अ कन्फेशन. सो ही वाज मेकिंग अ वीडियो व्हाइल ही वाज शोइंग अस के ये देखें, ये पेट्रोल बाइक है, ये बंद खड़ी हुई है, ये पेट्रोल की गाड़ी है, ये खड़ी हुई है, और ये देखें. अब वो चलाते हुए बना रहे हैं कि ये देखें पानी भी चल रहा है उसके अंदर, ये देखें मेरी अल्फा EV 125 मज़े में चले जा रही है. दैट होल लुक, इट्स नॉट वीडियो सेव है आपके पास अभी? सॉरी, है आप लोग के पास वीडियो? बिल्कुल है, और मैं आपको दूंगी भी उसको. That is a moment of pride. You know, when you say you're trying to change lives, you're not just saying कि आपने पैसे कम किए. एक होता है ना, एक दर्द सरी है, एक परेशानी है, आपने वो भी तो दूर करनी है, right? So no, ऐसा नहीं है. Look, it does depend, which is why I say, and this is what we tell our customers as well, learn about the product that you're buying, right? So इनकी ना वाटर रेजिस्टेंस की ग्रेड्स होते हैं, बैटरी के भी होते हैं. कुछ IP65 होंगी, IP66 होंगी, 67 होंगी. सो वो डिटर्मिन करती है कि वो आपकी जो बैटरी है वो वाटर रेजिस्टेंट है कि नहीं है. अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा सा लोग आई थिंक समझाना हमें भी चाहिए. इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीबडीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं आपको बोलूँ कि माहम, आप अपना फ़ोन जो है ना वो बाल्टी में रख के भूल जाएं और 4 घंटे बाद निकालिएगा और आप दुनिया का बेहतरीन तरीन ब्रांड निकाल दें, वो काम नहीं करेगा. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग वाटर प्रूफ एंड वाटर रेजिस्टेंट. देयर इज़ नो सच थिंग एज वाटर प्रूफिंग, राइट? सो दे आर वाटर रेजिस्टेंट. वाटर रेजिस्टेंस का मतलब है IP66, 67 का मतलब ये है
कि आपने उसको सबमर्ज्ड रखा पानी के अंदर, पूरी की पूरी डिवाइस को या पूरी बाइक को एट्सेट्रा, और आधे घंटे तक वो सबमर्ज्ड रही स्टैटिक, तो उसके बाद अगर आपने रखा तो वो डैमेजिंग हो भी सकता है। आप चलाते रहे, डिप्ट नहीं रही और उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, कुछ भी नहीं होगा उसका। विच इज़ वाई आई एम सेइंग वन मस्ट आस्क। हम कस्टमर्स को कहते हैं कि हमसे भी पूछें, बाकियों से भी पूछें कि जी अगर आप कहते हैं कि आपकी बैटरी जो है वो IP6667 है तो मुझे दिखाएं, उसका प्रूफ दिखाएं, यू नो, बिकॉज आई कैन क्लेम के है, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। सो not just the fact कि हमने you know we've cut our margins so that we can actually see a revolution in the EV motorbike you know the ecosystem and the industry, but also because we want this technology to be cheaper for people ताकि उनको एक मतलब समझ तो आ जाए ना, नई चीज़ है बिल्कुल। so फिर आप लोग महंगा कर दोगे इसको? नहीं, that's not the idea. that वो ज़रूर है कि and it's very simple, right? So for example, मैं जो रॉ मटेरियल ख़रीद रही हूँ उसको बनाने के लिए, या जो इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात इससे और बेहतर होंगे, if the raw material becomes more expensive, I will not do it for the fun of it. Just because my product started flying, that doesn't mean that we will raise the prices. हर साल इन्फ्लेशन होती है, थोड़ी सी प्राइसेस बढ़ती हैं, and quite honestly we do that as well. But we try to still keep the margins very low. Like I told you, there are brands in the market that are slightly lower in spec than our bike. My bike से 30-40 हज़ार अभी भी महंगी है। मैं चाहूँ तो मेरा the bike has a better motor, maybe a better battery as well. We can still sell it for higher, but we're not doing it right now. So no. ये आप रिकॉर्ड करके एंड देन बाद में चला सकते हैं, मेरी इजाजत है आपको। मेरे पास रिकॉर्डेड है, आपकी टीम कटवाएगी तो बिल्कुल। अच्छा, सो अनदर थिंग, ऑफ कोर्स अवेयरनेस बढ़ रही है, अ लॉट ऑफ पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स ईवीज, बट जैसे जो लोग हैं जो डरते हैं या जिन्हें लेट्स से अवेयरनेस नहीं है, तो एक लेमैन लैंग्वेज में समझाएं कि भाई क्यों मूव करें, हम ईवी पे क्यों करें मूव। कि देखिए पेट्रोल जो है वो तकरीबन आजकल कितने का हो गया है, 269-270 टाइप का 1 लीटर हो गया है ना, और आपको जो है वो 1 लीटर के अंदर तकरीबन रेंज देता है। अगर कोई बहुत अच्छी बाइक भी देगी तो वो 50 किलोमीटर्स मैं कहती हूँ देती है। वैसे इट्स लोअर बिकॉज आपकी जितनी पुरानी होती जाती हैं देन अगर मैं 50 भी रखती हूँ तो इसका मतलब है कि 2 लीटर के अंदर आपको 100 किलोमीटर करने के लिए 2 लीटर फ्यूल तो आपने डालना है उसके अंदर। चले, मैं नहीं कहती कि 260 है, मैं होल नंबर रखने के लिए कहती हूँ 250 का है। इंशाल्लाह पेट्रोल कम हो गया, उल्टा काम हो गया, 500 रुपये तो 5 से 600 रुपये तो आपको लग रहे हैं 100 किलोमीटर करने के लिए। उसके एवज जो EV125 हमने बनाई हुई है वो 2 यूनिट के अंदर पूरी चार्ज हो जाती है। अच्छा, हमारे जो यूज़र्स हैं उनका जो बैंड है वो पर यूनिट इनको 30-40 25-30 35 से ज़्यादा नहीं होता, बट मैं कहती हूँ नहीं चले वो हायर बैंड वाले उनको 50 रुपये पड़ जाता है। यहाँ आपने दिए फॉर 100 किलोमीटर्स तकरीबन 600 रुपये, यहाँ पे आपने 100 किलोमीटर्स दिए, चूँकि 2 यूनिट मैंने आपको कहा कि मैक्सिमम करके भी 50-50 100 रुपये बन गए। तो आपने 100 रुपये में 100 प्लस की रेंज दी और यहाँ पे आपने 600 रुपये में 100 प्लस की रेंज दी। तो इन अ वे आप कह सकते हैं कि जी ये आपको 1 किलोमीटर जो है वो 1 रुपये में EV बाइक दे रही है और पेट्रोल बाइक जो है वो आपको 1 किलोमीटर 6 रुपये में दे रही है। ठीक है, ये तो सिंपल पेट्रोल वर्सेस बिजली हो गया, राइट। उसके अलावा फिर पेट्रोल बाइक्स को ना आपने उनकी मेंटेनेंस करनी है, आपने उसका ऑयल चेंज करना है, आपने उसके बुश साफ करने हैं, स्मॉल मल्टीपल लिटिल थिंग्स दैट यू डू। I'm not a habitual bike rider, so when we were doing our R&D we went to different kinds of people. हमने ज़्यादा फोकस जो है ना ये राइडर्स से ज़्यादा किया था, जैसे बाइकिया हो गया, फूड पैंडा हो गया। वी वांटेड टू आस्क देम कि तुम लोग कितना मेंटेनेंस में, बिकॉज़ दे यूज इट अ लॉट, राइट। तो मैं एक कंजर्वेटिव नंबर लेके गई थी कि 1000-1500 रुपये आप लोग मेंटेनेंस पे करते होंगे, पर सम ऑफ देम गिव मी अ रियली इंटरेस्टिंग आंसर। ऐसा देखें आप अपनी चीज़ को कैसे मेंटेन करते हैं वो हर बंदे का अपना एक पर्सनल, देयर आर सम पीपल हु आर वेरी मेटिकुलस और हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, देयर आर सम पीपल हु आर लिटिल केयर फ्री जो कि उसको नहीं करते, बट द एवरेज कॉस्ट इज़ अराउंड 2,000 to 3,000, 2 से 3,000 रुपये तो आप सीधा हर महीने मेंटेनेंस पे लगा रहे हैं। As opposed to an EV bike, you don't need any maintenance. मैं जिसको आप कहते हैं ना चमका के रखें,
बस साफ करें उसको. You कोई just 6 clean महीने your में bike. भी नहीं, 12 There's महीने में भी nothing. नहीं. There's no oil you have to sort of change. There's no bush that you have to clean. Just keep it clean. That's all I will say. Even if you don't keep it clean, really it doesn't need any maintenance. What about the spare parts also? गए तो गए. Now that's also something very important to us. अच्छा, when we were launching the bike, हाँ. मेरे पास 2-3 डिफरेंट किस्म के डिज़ाइन आए थे. एक मेरे पास आया ट्रेडिशनल, आपका ये जो आप रोड पे देखते हैं CD70 125, उसके चाइनीज़ वर्जन्स भी आए हुए. 2-3 डिज़ाइन मेरे पास बड़े खूबसूरत आए. लाइक दे वर रियली, आई मीन इफ आई वर टू बाय देम आई वुड बाय देम. बट माहम, हियर्स व्हाट्स इम्पॉर्टेंट. आप एक जगह पे कह रहे हैं कि हम लोगों की ज़िंदगियों में आसानी करने के लिए निकले हैं, राइट? सो इट्स नॉट ओनली द मनी और द सेविंग दैट यू आर डूइंग, it's also the mental peace. अगर मैं, I mean, again, like, I mean, I'll be mentioning in simpler words, ये ऐसा है कि मैं Mercedes Benz या Audi या BMW नहीं लाना चाहती. I want to be able to bring a Corolla, जो चलाते हुए जिस मोटर बाइक को आप जब चला रहे हो तो आपको इस चीज़ की फ़िक्र नहीं हो कि अगर मेरा खुदा ना खास्ता कोई स्क्रैच लग गया, मेरी टैंकी पे कोई स्क्रैच लग गया, मेरा कोई साइड व्यू मिरर टूट गया, मेरे हेडलैम्प को कुछ हो गया, तो मैं वापस जाऊंगा अल्फ़ा के पास. अल्फ़ा कहेगा कि सब्र करो भाई, अभी 3 महीने आएगी मेरी शिपमेंट, तो उसके बाद मैं तुम्हें दूंगा. मेरे पास आने की ज़रूरत ही नहीं है. देयर मोर देन वेलकम टू कम टू अस एंड गेट दीज स्पेयर पार्ट्स फ्रॉम अस. वी हैव प्लेंटी ऑफ देम. They can go to any random spare part की shop and get it, buy it, and just replace them. So we chose a design which looks a lot like your traditional bike, ताकि abundance of spare parts, right? Also, do you think our people would understand technicalities when it comes to, you know, maybe batteries and stuff, types of batteries? तो आपको लगता है, आपने देखा है अपने कस्टमर्स को ये आसानी से समझते हुए, या बड़ा वक्त लगेगा, ट्रेनिंग लगेगी, मेहनत लगेगी? एक तो हमारे लोग बहुत स्मार्ट हैं. आई डोंट मीन इट इन अ सार्केस्टिक वे. माई हार्ट गोज आउट टू दैम. एक्सट्रीमली स्मार्ट पीपल. दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जिसको मैटर करता है ना पैसे सेव करना, वो हर तरीके से अपनी इन्फॉर्मेशन लेता है. थोड़ा सा मैं ये कहूँगी कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर है नॉट टू गिव स्क्रैम्बल्ड कम्युनिकेशन आउट. बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, एंड आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन दिस फैक्ट कि हमने डिसाइड किया हुआ है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे. किसी को नहीं ख़रीदना, वो ना ख़रीदे. विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. पीपल विल अंडरस्टैंड एंड पीपल आर नाउ स्टार्टिंग टू गेट इट ऑल्सो. मैं देखती रहती हूँ सोशल मीडिया पर लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं. लेकिन थोड़ी सी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको थोड़ा समझाएं. फॉर एग्जाम्पल बैटरीज़ हैं. देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैटरीज इन द मार्केट. आपने जो ज़्यादा नाम सुना होगा वो ग्राफीन सुना होगा, लिथियम सुना होगा. लोगों को कन्फ्यूजन होती है लिथियम आयन क्या होता है, लिथियम आयन फॉस्फेट क्या होता है. मैं इसको थोड़ा सा लेमैन लैंग्वेज में आपको एक चीज़ बताती हूँ. एक बेसिक बैटरी होती है, लेड एसिड बैटरी होती है. एसेंशली जो आपकी ग्राफीन बैटरीज होती हैं ना, वो इट्स अ मोर रिफाइंड फॉर्म ऑफ अ लेड एसिड बैटरी. अच्छा, ये मैं दो मेन का बता देती हूँ आपको, ठीक है. एंड देन देयर इज़ द लिथियम रेंज. सो लिथियम रेंज के अंदर यू गॉट NMC है, आपके पास लिथियम आयन फॉस्फेट है. सो फॉर एग्जाम्पल, we use lithium iron phosphate. A lot of the scooters that are outside in the market right now are using graphene. हालांकि lithium iron phosphate is more expensive as a battery for me to sort of, you know, put it in my product and then try to sell it at the same price जो कि graphene की है. वो again मेरे margins इससे shrink होते हैं. But that's a better battery. Now, how is it better? 3-4 चीज़ें मैं आपको simple terms में अगर बताऊँ कि number one, for example, your bigger companies like Tesla is moving to lithium ion phosphate, and you have a lot of big brands that are using it. चक्कर थोड़ा सा ये है, for example, graphene है ना, graphene battery, अगर मैं same capacity की battery ले लूँ तो graphene battery is going to take about 7 to 8 hours to charge, as opposed to a lithium battery which is going to take about 2 to 3 hours. Okay. ठीक है. Okay. अच्छा, अब lithium iron phosphate हम यूज़ करते हैं, जिसके फ़वाइद ये हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे मुल्क में गर्मी सर्दी बहुत ज़्यादा होती है. सो फ्रॉम ए सेफ्टी, फायर हैज़र्ड बहुत कम है. ग्राफीन इज़
बैटरी जिसको आपने बचा के रखना है, आग वगैरह भी कभी कभार उसके अंदर केसेस आते हैं, लग जाती है। लिथियम आयन, लिथियम, द होल लिथियम केमिस्ट्री जो भी आप उसकी यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ सेफ़र, it is slightly heavier than the graphene battery, but then you can उसकी charging time is way less, उसका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने सेम पावर की ग्राफीन बैटरी यूज़ की है, वो आपको साल से 1.5 साल मैक्सिमम आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके एवज़ जो आपकी लिथियम बैटरीज़ हैं वो 5 से 8 साल तक है। आई से 5 to 8 years बिकॉज़ वो यूसेज के ऊपर है ना, उसके साइकिल्स होते हैं। आपने कितनी मरतबा उसको चार्ज किया है, राइट? कितना एक साइकिल पूरा कितना आपने एक दिन में, आप एक मरतबा कर रहे हैं, दिन में 2 मरतबा कर रहे हैं, एक्सेट्रा, इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। बट साल से 1.5 साल ग्राफीन एंड 5 से 8 साल लिथियम आयन फॉस्फेट जो है वो कर सकते हैं। चार्जिंग टाइम इज़ अ ह्यूज थिंग, यू नो, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू पीपल कि अच्छा मैं अगर राइडर हूँ और मैंने लंच ब्रेक के अंदर घंटे के लिए भी उसको चार्ज कर लिया, तो आपको उसने जहाँ आपकी अगर दे रही है 100 किलोमीटर भी अगर आपको दे रही है, तो वो 150 किलोमीटर तो सीधा सीधा आपको उसने रेंज दे दी ना। टाइम मैटर्स। सो वी मस्ट एक्सप्लेन टू पीपल एंड ऑल्सो ग्राफीन का एक देखें, मैं आपको इस तरह बताऊं कि अगर मैं अपने स्कूटर में या अपनी बाइक में ग्राफीन बैटरी डालूं तो मैं उसको काफ़ी सस्ता बेच सकती हूँ। कस्टमर्स भी जब लेने जाते हैं तो वो जाते हैं और उनको कहते हैं कि चलो मेरे पास इस ब्रांड के पास ये स्कूटर है और ये इस ब्रांड के पास एक स्कूटर, थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, ये लिथियम है, ये ग्राफीन है, मैं तो ग्राफीन के पैसे आज बहुत कम दे रहा हूँ, ये तो मुझे सस्ती पड़ रही है। दिस इज़ अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है टू मेक पीपल अंडरस्टैंड इन द शॉर्ट रन वो कम पैसों में ले लेंगे उसको, पर जिस बैटरी की लाइफ ही नहीं है, साल सवा साल के बाद आप क्या करेंगे उसका? योर आई मीन इट्स गोइंग टू बी वो पेपर वेट, तो मैं उसको नहीं कहूँगी कि इसकी बस डेकोरेशन पीस की तरह आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसकी लाइफ इतनी नहीं है। Also the time you save when it comes to charging. Yes, as well. the time you save when it comes to charging, the safety, fire hazard, the whole life of the product. So I mean अगर आप पैसे बचा रहे हैं, let's say आपके, हमने जो एक सिंपल कैलकुलेशन की थी उसमें 10 से 15 हज़ार रुपये तो मिनिमम आप ईवी बाइक के ऊपर बचाते हैं। आप वो पैसे सिर्फ साल 1.5 साल तक बचा सकेंगे विद द ग्राफीन बैटरी। उसके एवज़ आप जो है वो एक लिथियम आयन फॉस्फेट या लिथियम, इवन लिथियम NMC, लिथियम उसके ऊपर भी आप जो है वो तकरीबन 5-6 साल तो बचा ही सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पीपल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन यू नो व्हाट काइंड ऑफ बैटरी इज़ बीइंग यूज्ड। बट येस, पीपल नाउ आई थिंक जो इतना ज़्यादा बात चल रही है एंड more brands coming into the market for your EV bikes, people are now getting it. अलबत्ता मैं फिर कहूँगी to my peers as well, to people of knowledge, कि वो ज़रूर समझाएं ये चीज़ें। मैं आपको अपनी कंपनी का एक बता सकती हूँ कि जो हमारे हेड ऑफ मार्केटिंग हैं, वही मेरे पास एक दिन आए और उन्होंने कहा कि हम जो अपना मार्केटिंग का बजट है ना मैडम, उसका 40% ऑफ दैट इज़ गोइंग टू बी डेडिकेटेड टूवर्ड्स अवेयरनेस। उसमें हम कोई ये बात नहीं करेंगे कि अल्फ़ा जो है वो इतनी रेंज है और इतनी देर में चार्ज होती है और आप इसको बेचेंगे। ऑब्वियसली हमारे प्लेटफॉर्म से है तो वो नज़र आ रहा होता है, बट हम सिर्फ बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी क्या है क्या नहीं है और इसको किस तरह यूज़ करते हैं। मैनुअल गाड़ियाँ होती थी, फिर ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आ गई, तो लोग सीखे थे। तो अब अवेयरनेस के लिए किस तरह से, मतलब सिर्फ डिजिटली या इंस्टीट्यूट जा रहे हैं या कुछ इस तरह की कैंपेन्स हैं? मल्टीपल थिंग्स वी डू। आजकल अ लॉट ऑफ पीपल आर कनेक्टेड टू सोशल मीडिया, बहुत ज़्यादा लोग। सो एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे टू रीच आउट टू पीपल। वी हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट जो हम खुद बनाते हैं, जो डिजिटल मीडिया पे भी डालते हैं। वी वर्क विद अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स ऑल्सो whose voice is heard. We actually pay them money to sort of spread awareness कि ये किस तरह होता है, किस तरह नहीं होता. We have a lot of road shows, right? So we go to universities, we go to these factories and we tell people. We don't say कि जी ये बाइक है, आप इसकी राइड लें और ये इतने की है और आपको इंस्टॉलमेंट में। पहले उनको समझाते हैं कि this is how it works and this is then what it is. Also tell me, are you like, so I was processing another thing.
a women heading EV business, and do you see other women heading this industry specifically? I think there are male CEOs everywhere when it comes to this industry specifically. Yeah. Yeah. So what is like the biggest challenge as a woman in business, I would say? To your first question, you will start seeing women going to Mars. We'll be the first ones to go, you and I. So, Inshallah. it is a challenge. It is a bit of a struggle sometimes because मैं अपनी ही एग्जाम्पल आपको दे सकती हूँ. So in the automobile industry, I think I am the only female that's leading this space. बट मुझे बहुत रिस्पेक्ट भी मिलती है अपने पीयर्स से, अपने कॉलीग्स से, हमारे रेगुलेटर्स हैं, EDB. बहुत इज्जत भी मिलती है, बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलती है. देखिए कंपटीशन तो हर जगह है, वो सब फीमेल हो के अंडर ना हो. एस्टिमेट करते हैं. Tricky नो मत question. बोलिएगा. Tricky question. झूठ अब नहीं. मैं अब बोल नहीं सकती ना, हमारी आपने वैल्यूज podcast से नहीं पहले है. हमारी वैल्यूज में ऑनेस्टी है. Not all of them, but I will have to be honest that I have entered some rooms sometimes where they look at me and they're like, what does she know? You know? नॉट जस्ट ऑफिस, आई थिंक वो बाहर भी होगा. हाँ. No, they लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि आई थिंक वो आदत की बात है. Initially थोड़ा सा disbelief होता है, but then when we get into a conversation, they sort of realize कि नहीं, okay, she knows what she's talking about, and so then they sort of do give me that respect and everything. But I'll have to say that it doesn't happen everywhere. I mean, honestly, I think 70 to 80% of these conversations that I've gotten into with my male colleagues and peers, I've always gotten respect from them. I think I have to. We all have to give them a round of applause. ये इन्हीं आदमियों की वजह से जो है वो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं. देखिए हमें कोई इस तरह ज़रूरी नहीं है, बट हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन, सोसाइटी एट्सेट्रा, लाइक दैट सो मच, राइट. सो हमें जो पहला पुश चाहिए था वो हमें चाहिए ही, या अपने फादर्स से था, या अपने फ्रॉम आवर ब्रदर्स, फ्रॉम आवर हस्बैंड्स, फ्रॉम आवर फ्रेंड्स. आई मीन ऑनेस्टली my being here is testament to the fact that I had a father who encouraged me. I had a brother, not just had a brother, still have a brother on my back जो बोलता रहता है मुझे बार बार, नहीं 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 तुम और भी कर सकती हो, और भी कर सकती हो. I have a husband who initially आपने मुझसे पूछा था कि आपकी बेटी बहुत छोटी थी, and I was actually breastfeeding her at that time, पर दूध भी पिलाना, फिर वो भी करना. I had a lot of support from him where he was doing the dishes, he was cleaning the house for me when I was in the university. He was taking care of my daughter. So ये लोग भी हैं, and the good news is कि ये लोग अब बढ़ते जा रहे हैं, and kudos to them. So yeah, I mean, it has its challenges, but again, nothing that you and I, if we put our minds to it, ये मेरा एक message भी होगा ख़वातीन को कि देखें, a lot of it is intimidation that we perceive. हाँ. We think कि हम एक कमरे में घुसे हैं और उसमें 25 आदमी हैं and I'm the only woman, तो वो मुझे, let's park that thought for a second. And let's really think positively and say कि no, this guy is not undermining me. I am undermining myself. We've got to stop doing that. And you'll see how nobody else will. So yeah, it's about the mindset mainly. Yep. लेकिन चैलेंज बताएं मुझे फिर भी. ये आपने स्वीट बातें कर ली, आपने चैलेंज नहीं बताया अभी भी. हाँ, आते हैं. So okay, so you can maybe think of juggling between home and maintaining sort of balance. Some people chase balance, people ambitious like you are unable to maintain that balance sometimes. So what has been the biggest challenge? ये मेरे ख्याल है ये सबसे कॉमन चैलेंज होता है हम ख़वातीन का. while even if we have counterparts who are taking care, हमें शायद अल्लाह ने बनाया भी इसी तरह है. वी आर बाय नेचर हम इस तरह हैं कि मैं फन फैक्ट बताती हूँ कि कभी कभार, थैंक गॉड हमेशा करने में, कभी कभार मेरे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट कि अच्छा हमें इतने थाउजेंड्स का ऑर्डर मिलने वाला है और अभी हमने इसकी सप्लाई चेन को किस तरह देखना है और हमें इसका फ़ंड कैसे देखना है, इनफ्लोज कैसे होंगे, आउटफ्लोज कैसे होंगे. और साथ में ना पड़िंग करके मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आएगा. मैं आई ट्राई टू कीप इट फोन डाउन, बट इट्स हैपेंड द अदर डे एक्चुअली. एंड फ़ोन उठाओ तो उसके अंदर ये सवाल आया हुआ है, आज खाने में क्या पकेगा.
And You have to make those decisions also. Huh? I just smiled and I was like, here I'm talking about millions of dollars money, and here I'm talking about aaj sabzi banegi ki wo banega. But really, the management of the house and how all of these things are going to run, we as women, I think, have to keep we have to try harder to keep that balance. It's not easy. Really, it's not easy. And you're right. Okay, I'm probably sugarcoating it a little bit as well and stuff. And I think it's मेरी अपनी शायद nature ऐसी. I don't like to see the tougher side of life. I like to see the lighter side of life. That's a different thing. But really, it is a challenge. You've got to take care of your parents, your husband, your children, your in-laws, and what the neighbors and the kids whatnot. always come back to mother. क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, कब वापस आऊँगा, everything. Like you gotta take care of their schedule also. Right? Yeah. And I've got daughters. मेरी तो हैं ही बेटियाँ, तो वो तो मुझसे तो बहुत ज़्यादा वो करती हैं. मेरा ख्याल है जो बेटों वाली माएँ होती हैं उनके अलग किस्म के मसाइल होते हैं. So yeah, that's there. But I think we impossible नहीं है. We've got to find a way to sort of और मैं आपको एक चीज़ और interesting बताऊँगी. So my daughters are extremely independent. So independent in the sense that if I leave them at home and I have to travel and there is nobody at home, मुझे नहीं फिक्र होती है कि अच्छा how will the laundry happen, they can manage the entire house really well. I mean, I've got a... How old are they right now? I've got my older one is 20, वो अपनी engineering कर रही हैं. छोटी वाली जो है वो she's 15. Even the 15-year-old one, because part of my family lives in Abu Dhabi, तो वो कभी कभार ये होता है कि she's alone in Abu Dhabi, तो वो पूरा का पूरा everything is managed. In the morning she will wake up, she will make her own breakfast. Actually मैं जब जाती हूँ तो मेरा नाश्ता भी वही बना रही होती है. And ये बात बताने का मकसद ये था कि I think जो working ख़वातीन होती है ना, इनके बारे में एक वो है कि इनकी तो फैमिली लाइफ बहुत इफेक्ट होती होगी, बच्चे निगलेक्ट होते होंगे. यू हैव मोर कॉन्फिडेंट एंड मोर इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन. बच्चे ट्रेन भी वैसे ही होते हैं बिकॉज आपने उनको ट्रेनिंग इस तरह की दी है ना. मैंने अगर उनके सारा काम मैंने करना है तो मैं काम तो नहीं कर सकती. सो आप उनको इतना इंडिपेंडेंट बनाते हैं. वी एक्सपेरिमेंटेड दिस विद माई ओल्डर डॉटर. दोनों में 5 साल का फ़र्क है. बट वो मुझे अब नज़र आ रहा है कि इट हेल्प्स बिकॉज शी इज़ नाउ स्टडीइंग समवेयर जहाँ पे she's living in a hostel and doing everything herself, but this has been a part of the whole training as such. Really. Wow. So, that was a very good parenting tip for working women specifically. Yeah. I'll jump to the female bosses वाला part because we have been listening. मेरी कोई female boss थी नहीं, thank God. मैं इतना बुरा सुन लिया उनके बारे में already. Though I am a female boss of my team, but होता ये है कि मैंने हमेशा ये सुना है female bosses are tougher than male bosses. आपने सुना है? मेरे मुंह पे तो कोई कहता नहीं है. So, एक काम करें, आप मेरी टीम से जरूर पूछ के और मुझे बता दीजिएगा कि उसका क्या ख्याल है, क्या नहीं है. देखें, वी आर हम बाय नेचर थोड़ी सी मेटिकुलस हैं. हाँ, सो ये पढ़ा हुआ है मुझे थोड़ी देर से ना, थोड़ा कर रहा है ये तंग कि ये यूँ ऐसे क्यों है. फिर मैं नोट कर रही हूँ यहाँ पे जो है ना वो हसल लिखा हुआ, हसल हैज़ टू शो, राइट. सो लाइक वी आर थोड़े से मेटिकुलस होते हैं. थोड़ी सी चीज़ें हमें प्रॉपर चाहिए होती हैं. दूसरी बात ये कि वी डोंट हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड. आई कांट स्टे इन द ऑफिस टिल 11 PM. लाइक अ लॉट ऑफ मेन आर एबल टू डू दैट, राइट. सो बट आई लेजिटिमेटली फील कि टफर तो नहीं होती है, हमारी सॉफ्टवेयर साइड ज़्यादा बाहर आ जाती है. हाँ. मेरी स्ट्रगल तो उल्टी ये है कि येस आई एम टफ एब्सोल्युटली because I just need to get things done, right. So मेरा अपना एक्सपीरियंस भी ये रहा है with people I have worked with जो एक ज़माने में मेरे bosses हुआ करते थे, and females and males and all of that. But it's really a matter of, it's a personality thing. Men can be tough, women can be tough. Really no such thing as female bosses are tougher. मतलब it's a little unfortunate. हमारे ग्रुप में भी कभी कभार कोई बात होती है. And this is where I say that we have to be more encouraging of women, us women being encouraging of other women as well, because कभी कोई सक्सेसफुल औरत को देखते हैं या कोई CEO पोजीशन पे देखेंगे, हेड पोजीशन पे देखेंगे, तो वो मैंने once in a while लोगों को ये कहते हुए सुना है, oh she must probably not have a life then, right, because that's what it takes. No, that's not what it takes. I mean, I can show you a really nice family photo जो कि सिर्फ Instagram के लिए नहीं है.
So no, that's not really the case. I think आप tough होते हैं जब ज़रूरत होती है. मेरा ख्याल ये है कि teams need to understand if the female or the male is being tough, तो वो वजह क्या है उसकी. ये तो हम अभी फीमेल बॉसेस की बात कर रहे थे, ख़वातीन की जहाँ हम बात कर रहे थे. So I think if I'm not wrong, we're the only manufacturing ऑटोमोबाइल फैसिलिटी इन पाकिस्तान जिसमें हमारे पास फीमेल टेक्नीशियंस हैं. सो जहाँ पे वो आपको आदमी नज़र आ रहे हैं कि वो असेंबली लाइन के ऊपर बाइक है, शैसी है, उसके ऊपर चीज़ें माउंट करनी है, नट बोल्ट उसका टाइट करना है. हमारे पास ख़वातीन भी हैं. और माई एजेंडा ऑनेस्टली इज़ के बाय द एंड ऑफ द ईयर आई शुड हैव ए प्रोपोर्शन ऑफ 50-50% कि 50% मैन एंड 50% वेमेन. जब मैं पहली मरतबा औरतों को लेकर आ रही थी कि हमने इनको somebody came to me for a job and I said नट बोल्ट लगा लोगी तुम अगर हम तुम्हें सिखा दें. So very excited about it. They said we will do it. My production head came to me, very fine gentleman. He said कि मैडम हम रख लेते हैं उनको, but what happens इनको फिर हमें ख्याल रखना होगा एंड कोई खुदा न खास्ता कोई केस हरासमेंट का ना हो और ये हो. तो मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा that my friend is your responsibility and my responsibility, not hiring women because we know कि ये बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेटेड एरिया है is an excuse. So कर तो हम रहे हैं. अच्छा, all of that happened and he just probably needed my confidence कि अगर कोई देखिए ऊंच नीच आदमियों के बीच में भी हो जाती है, औरतों की भी. He was probably just looking for confidence कि अच्छा अगर खुदा न खास्ता कोई थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ हो जाती है, so does she have my back or not. 3-4 months later the same gentleman came to me and he said कि जिस पूल से भी आप इन ख़वातीन को लाई थी, कैन बी हायर मोर विमेन. एंड आई वॉज वेरी हैप्पी बट आई सेड क्यों. उन्होंने कहा कि ये हम जो औरतें जिस तरीके से टाइट करेंगे ना बोल्ट को भी, या जिस चीज़ में थोड़ी सी हाथ से अलाइनमेंट की ज़रूरत होगी, वो इतनी परफेक्शन से करती हैं कि जो प्रोडक्ट, उन्होंने कहा कि अब मैंने प्रोडक्ट पूरा का पूरी असेंबली एक एक को देने का इरादा कर लिया है बिकॉज आई वॉन्ट टू बी एबल टू सेट दैट एज एन एग्जाम्पल. एक्सीलेंस. Okay. Exactly, because the product comes out to be really well. So really, I think there is no such thing as. Wow, amazing. So before closing the interview, of course, this was really good information, and I'm hoping कि लोग सीखेंगे इससे. Inshallah. But before closing the interview, last piece of advice for, especially for women who are watching you, career-oriented women, women in business, जो काम भी कर रही हैं साथ साथ, घर को भी मैनेज कर रही हैं. अगर उनको आप एडवाइस देना चाहेंगी तो क्या देंगी? मेरी सबसे पहली एडवाइस होगी कि जाएं ना जाएं, मेरे पास आएं, बाइक ख़रीदें. आई विल गिव देम अ बिग डिस्काउंट. इट्स नॉट अबाउट मी वांटिंग टू, आई विल बी एबल टू, वी आर एबल टू सेल आवर बाइक्स टू डिफरेंट पीपल. एक मुझसे सवाल आता है विच आई डू वांट टू टॉक अबाउट इज़ रेजिस्टेंस है थोड़ी सी औरतों के अंदर, या आदमी भी. फॉर एग्जांपल को भाई कह देगा कि नहीं मैंने अपने भाई बहन को नहीं देनी क्योंकि जब वो बाइक के ऊपर जाएगी तो लोग उसको जो है वो देखेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे. मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है एंड आई थिंक यू विल हैव टू गिव मी दिस मच क्रेडिट कि इतनी दुनिया देख ली है कि जो बात कर रही हूँ उसके अंदर है थोड़ा दम. लोगों को ये इशू नहीं है, लोग आपको इसलिए नहीं देखते हैं बिकॉज आप एक औरत हैं. आज मैं कहूँ ना कि किसी एलियन को ले आएँ और उसको बिठा दें बाइक पे, तो वो आदमी और औरतें मिल के उसको ज़्यादा देखेंगे. बिल्कुल. द फैक्ट द मैटर इज दैट इट्स नॉट नॉर्मलाइज्ड. व्हेन इट इज़ नॉर्मलाइज्ड, आदमी अपनी नज़रें भी झुकाना शुरू कर देंगे और ऐसे प्रॉब्लम्स भी आना बंद हो जाएंगे. आई हैव फेथ इन द मेन ऑफ दिस कंट्री. दे आर वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ विमेन ऑल्सो. तो मेरी पहली एडवाइस ये होगी कि प्लीज़ बी इंडिपेंडेंट. मैं अपनी हम्बल घराने वाली ख़वातीन को भी ये कहूँगी, मैं अपनी सुपर रिच लोडेड फ्रेंड्स को भी कहूँगी कि बी इंडिपेंडेंट. बी इंडिपेंडेंट. छोटे से छोटे काम के लिए भी बाहर निकलने के लिए डिपेंडेंट ना हो. Why should I wait for my husband to come back and say कि जी मैं आऊँगा तो गाड़ी लेके जाऊँगा तो आपको लेके जाऊँगा? Why should anybody wait for their brother or their father to come and say कि जी वो आएंगे तो मुझे बाइक के ऊपर लेके जाएंगे? क्यों? You are able to do so much more. Get a bike, get on the bike yourself. We have training programs जो हम देते हैं. They can register with us. हम उनको सिखाते हैं. Okay. बिल्कुल.
हम उनको सिखाते हैं, we give them a bigger discount just because they're women, because we want to encourage them. We are currently working with some कुछ different government के इदारे भी हैं जिसके अंदर we're talking to them about creating a specific helpline जो कि सिर्फ women riders specific है. Wow. So that if there is safety और ऐसा कोई भी issue आता है तो वो उसको we should be able to kill it. Trainings के बारे में please do give me some more information so that I can put in the description. और अच्छा, अब ये तो हमने ख़वातीन की बात कर ली. मैं सिर्फ ना ये कि हम उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ सब कुछ आसान करने की कोशिश कर रहे हैं. लाइक आई सेड, द मोर विमेन देयर आर ऑन द रोड, माई लेडी फ्रेंड्स, आई प्रॉमिस यू, आप मुझसे आगे पैसे वापस ले लीजिएगा मुझसे अगर ये ना हुआ कि ये सब नॉर्मलाइज हो जाएगा. नोबडी विल केयर अबाउट इट. Of course. ऑन टॉप ऑफ इट, देखिए ईवी काम सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ एक ईवी बाइक बेचनी है ना, आपने ये पूरा एक इकोसिस्टम है. आप चार्जिंग स्टेशंस की बात कर रही थी, वो तो पीपल विल कम इन, देयर विल बी इन्वेस्टर्स एंड चार्जिंग स्टेशंस बनना शुरू हो जाएंगे. एटलीस्ट हमारी मोटर बाइक के अंदर, आई मीन द चार्जिंग, इट डजंट नीड अ प्रॉपर कोई स्पेसिफिक चार्जर नहीं चाहिए, चार्जिंग स्टेशन नहीं चाहिए. जहाँ आप अपना मोबाइल, मैं पहले लोगों को कहती थी कि जहाँ इस्त्री लगाते हैं ना, फिर मैंने आई रियलाइज इस्त्री ज़रा ज़्यादा पावर ड्रॉ करती है, इसकी एग्जांपल देना बंद कर देती हूँ. जहाँ मोबाइल चार्ज करते हैं वहाँ आप अपनी बाइक भी चार्ज कर सकते हैं, राइट. सो हम उसके साथ पूरा का पूरा इकोसिस्टम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. वी हैव अनदर प्रोग्राम दैट इज़ द मैकेनिक ट्रेनिंग प्रोग्राम. उसके अंदर हम शहर में डिफरेंट मैकेनिक्स को हमने कहा हुआ है कि आके हमारे साथ रजिस्टर कर लो. हम उनकी 2 हफ्ते की ट्रेनिंग है, हम उनकी दिहाड़ी भी देते हैं उनको, ताकि उनका काम अगर रुका हुआ है तो वो उसको पैसों का कोई प्रॉब्लम ना है. वी फीड देम, वी ट्रेन देम, हम उनको अपनी बाइक स्क्रैच से पूरी दिखाते हैं. फिर हम उनको जो कस्टमर की कंप्लेंट्स आती हैं ना, मेनली ईवी बाइक्स की, हम उनको सिखाते हैं कि जी ये जनरली कंप्लेंट्स होती हैं, दिस इज़ हाउ यू फिक्स देम. एंड ऑन टॉप ऑफ इट वी टेल देम वी आर हियर फॉर यू. कोई भी मसला हो, कुछ हो कि हम इसको किस तरह ठीक करेंगे, आप बताएं. वी वॉन्ट टू बी एबल टू मेक श्योर कि जो ये आइस या जो पेट्रोल बाइक्स के जो मैकेनिक्स है ये आउट ऑफ जॉब तो ना हो जाए ना, ताकि वो एक ट्रांजिशन आए इस पूरी चीज़ के अंदर. सो इट्स गॉट टू बी अ holistic program of, yes, you sell EV bikes, you make it easy for women, you make it safer for women, you make it cheaper for people, you make the technology reliable, and बाकी जो इंडस्ट्री जो इससे मुंसलिक है उसको साथ लेके चलें. सो हम बहुत ज़्यादा लोकलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा करते हैं. देयर आर स्मॉल बिजनेसेस वी आर टॉकिंग टू कि अच्छा, मैं बड़ी कंपनीज होती हैं वो कहती हैं कि जी अगर हज़ारों का ऑर्डर आपने जो है वो महम की एक कंपनी को ना दिया तो आपको देंगे ही नहीं. हम कहते हैं हम देंगे, तो मुझे 10 पीस बना के दे दो, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू ग्रो इन दिस स्पेस. दिस इज़ वॉट वी ऑल नीड टू probably, not just women, this is advice for my peers and everyone else. This is what we need to do to really bring a revolution here. And Lovely. I believe And I hope you will. Inshallah. That you do. We will. Our heart is set on it, और हमने वादा किया हुआ है कि हम करेंगे इंशाल्लाह. Inshallah. Thank you so much for being with us today. Thank you very much, Maham. It was lovely talking to you.